हेलो एंड वेलकम टू पावर स्किल्स बाय तन्वी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, पावर स्किल्स ये वो इम्पोर्टेंट स्किल्स है जो हमें कम्युनिकेट, कोलैबोरेट और ग्रो करने में हमारी हेल्प करते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल ह्यूमन स्किल्स। जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस और वर्क प्लेसेस में टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है, वहीं ये ह्यूमन स्किल या फिर पावर स्किल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। और जब हम पावर स्किल्स की बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इज कम्युनिकेशन स्किल। नाउ जब मैं लोगों से बोलती हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आई हैव हर्ड मेनी पीपल सेइंग कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है बिकॉज मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू फर्स्ट दैट इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज अ लैंग्वेज आप कम्युनिकेट किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। However, English plays a very important role at workplace. Not just that I am not a good communicator, but because I can't speak English, but बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है that I can understand English, but I can't speak English. Have you ever felt this? If yes, comment yes in the comment section. All right, so let me tell you one thing. English is a language we already know, right? और आज अगर आप खुद से पूछो कि आपको कितने सारे लैंग्वेजेस आते हैं, ऑफ कोर्स हिंदी एंड योर मदर टंग would be two most important languages, right? Because Hindi is widely spoken in the country and your mother tongue because आप बचपन से ये चीज बोलते आए हो। Now remember बचपन से हमें हमारा मदर टंग में बात करने के लिए किसी ने हमें ग्रामर रूल्स सिखाए थे पहले? Of course the answer would be no, right? हम लोग कैसे सीखे ये लैंग्वेज? How did we learn that language? Any language. So yes, tell me, how did you learn that language? Whether it's Hindi, Bengali, Marathi, Bhojpuri, Tamil, Telugu, whichever language. How did you learn this? Answer in the comment section. Of course, because it was spoken in the family और आपने वहां से सीखा उसको, right? But have you ever paid attention that any language you learn more by listening, right? तो आज के हमारे इस सेशन में we will try to understand the practical way of learning any language, right? That's the LSRW model. कहीं भी जाओ तो हमें पहले इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश के ग्रामर रूल्स सिखाए जाते हैं that grammar is very important, grammar is very important for learning English. Of course grammar is important for learning English or any language. But tell me honestly, जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ, मैं पटना बिहार से हूँ तो मुझे भोजपुरी भी आती है, मुझे हिंदी भी आती है बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग दुर्गापुर से किया है विच इज इन वेस्ट वेस्ट बंगाल। तो मैं थोड़ी बहुत बंगाली भी बोल सकती हूँ और समझ जाती हूँ। आई एम मैरिड एंड आई एम सेटल्ड इन महाराष्ट्र, तो मुझे मराठी भी आती है बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे मराठी बोला जाता है तो मैं बोल भी पाती हूँ और मैं समझ भी लेती हूँ। एंड लास्टली इंग्लिश आती है बिकॉज it was a medium of communication throughout your education or workplace में, right? And बचपन से ये बताया गया that it is important, you should know it, right? But one of the most important thing that I would like to tell you why I'm talking about this is कोई भी language सीखने के लिए LSRW. It's listening, speaking, reading and writing. इंग्लिश को लर्न करने के लिए या फिर कोई भी लैंग्वेज को जानने के लिए, समझने के लिए और उसको अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम ये मॉडल को फॉलो करें एंड वी वर्क ऑन ऑल दीज 4 ways together, like listen, speak, read and write. Very important. Okay, of course listening is the foundation क्योंकि हम जितना ज्यादा खुद को expose करेंगे उस language की तरफ, like जितना ज्यादा सुनेंगे, it would be easier for us to understand that language more. And the next one is speaking. So try to speak 3 to 4 sentences minimum daily, right? Think in that language, think in English, and then speak in English. Or maybe you can also do a role play kind of thing, or just repeat what you have heard in the news or in the movie and how that person was telling those sentences. ये भी आपकी काफी मदद करेगा बोलने के लिए. And the last one is writing.
मे बी मेक इट अ हैबिट कि आप रात को सोने से पहले कुछ भी 4-5 सेंटेंसेस, आज दिन कैसा गया, या फिर आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या खाया, आज मुझे कैसा फ़ील हुआ, आज मुझे क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। ये सारी चीज़ें 4-5 सेंटेंसेस या फिर 10 सेंटेंसेस या एज़ मेनी सेंटेंसेस एज़ यू वांट, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, ओके? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। बट द ट्रुथ इज़, जब हम ये चारों स्किल्स के ऊपर साथ में काम करते हैं, तो हम एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाते हैं। सो इट इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एक सिंपल रूल देती हूँ मैं आपको एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने के लिए, which is follow the LSRW approach every day. What you need to do: 10 minutes, listen; 5 minutes, speak; 5 minutes, read; 5 minutes, write. So आप give your time, or bifurcate your time, ऐसे segregate करो अपने टाइम को कि आप 10 मिनट सुन रहे हो, इंग्लिश न्यूज़ सुन रहे हो या फिर मूवीज देख रहे हो, फिर 5 मिनट में भी इमिटेट करो कि वो न्यूज़ रीडर कैसे पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, या फिर आपने मूवी में क्या देखा, आपको क्या डायलॉग अच्छा लगा, जस्ट इमिटेट और रिपीट दो सेंटेंसेस. सो राइट, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे, आपको क्या अच्छा लगा, या फिर मे बी यू कैन जस्ट राइट डाउन दोज डायलॉग्स, या आपने क्या सुना आज, आपको आपके माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू राइट अबाउट. जस्ट गिव 5 minutes for writing and 5 minutes, for reading as well. Read something, read a newspaper, read a book and read it aloud, ताकि आप खुद को सुन सको कि जब आप पढ़ रहे हो, जब आप बोल रहे हो, तो कैसा लग रहा है, आपको कैसा प्रोनाउंसिएशन चाहिए, आपको अपना प्रोनाउंसिएशन कैसे अच्छा करना है. Trust me, follow this LSRW concept and gradually you will see that you have become a confident speaker. Of course, my next sessions may English speaking, or English language or grammar rules, and how to become a confident speaker in English leke aungi for sure. But till then, follow this model, follow this rule, and see how you are improving.